सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ.com ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਜਰਸ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਬਟ ਮੈਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੈਂਥੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੈਕਚਰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਤੀਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੈਪ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ deviation from mean, ठीक है, by taking deviation from mean या arithmetic mean। सो एक मैथड है डायरेक्ट मैथड ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਆਪਾਂ mean ਦੀ deviation यूज करके ਜਿਹੜਾ mean ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ deviation ਉਹਨੂੰ यूज ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਥਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ without taking deviation from mean, ठीक है, without taking deviation from mean, right। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ summation of, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, summation of x minus mean whole square upon n। n ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ n ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, x ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਮੀਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ x minus mean upon ਉਹਦਾ whole square upon n। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ f x minus mean ਦਾ whole square upon n, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼, ਇੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ x upon n, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਦਾ। ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ fx upon n। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।
एक ये होर चीज़ याद रख लो कि जे तुम मैं भुल ना जाए तो दस देवां, जे इन केस तुहानूं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने लई आंदा आ ते उहदे वास्ते की फॉर्मूला आ कि जो भी तुसीं स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी फॉर्मूला ला के स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे उन्होंने डिवाइड कर देना तुसीं मीन दे नाल, ठीक है। वो तुहाडा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जे तुहानूं फाइंड करने लई कहंदा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने लई कहंदा तो फिर तुसी की करना है, सिंपली जो तुसी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीता है डिवाइडेड बाय मीन, जो भी तुहाडा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आया उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो वो तुहाडा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन केस तुहानूं कल्ला वेरिएंस फाइंड करने लई कहंदा है, कल्ला वेरिएंस, ठीक है, तो उस केस दे विच जो भी तुहाडा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उन्होंने स्केयर कर देना, होल स्केयर, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर दिंदी हां, जेकर तुहानूं कोफिशिएंट फाइंड करने लई आंदा स्टैंडर्ड डेविएशन दा तो तुसीं जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीता होगा उन्होंने मीन दे नाल डिवाइड कर देना। जेकर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने लई कहंदा तो जो भी तुहाडा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इनू सॉल्व करके तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। जे कल्ला वेरिएंस फाइंड करने लई कहंदा है, क्योंकि वेरिएंस रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हैगा शायद पीसीएस दे पूछे, तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन दा होल स्केयर कर देना, ठीक है जी। अच्छा, आई होप कि तुहानूं समझ आ गया कि आपां अगर सानूं डेविएशन फ्रॉम मीन उन्हें दिता तो आपां ने इंडिविजुअल सीरीज च किद्दां फाइंड करना है, डिस्क्रीट ते कॉन्टीन्यूअस च किद्दां फाइंड करना है। सो यह फॉर्मूले आपां लगाने हैं। हुण सैकेंड हैगा डायरैक्ट मैथड ही बट विदाउट टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन, डायरैक्ट मैथड विदाउट टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। सो उस केस दे विच तुसीं की करना है, फॉर्मूला की होएगा तुहाडा इंडिविजुअल सीरीज वास्ते सब तो पहला इंडिविजुअल सीरीज वास्ते तुहाडा फॉर्मूला होएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ, ध्यान नाल, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एन की है इत्थे क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, ठीक है। summation of x square upon n minus summation of x upon n the whole square, but because सानू पता है कि summation of x upon n जेड़ा है वो किदे बराबर हुंदा है, मीन दे बराबर। हुणे मैं तुहानू दस्सिया पिछली स्क्रीन ते, ठीक है, कि summation of x upon n की हुंदा इंडिविजुअल सीरीज वास्ते जिसकी मीन कढदे आ ਤਾਂ इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सिग्मा is equal to summation of x square upon n minus मीन दा स्क्वायर। कोई फर्क पएगा? कोई फर्क नहीं पएगा, ठीक है जी। सो ये हो गया तुहाडा इंडिविजुअल सीरीज दा। ते जे मैं गल करां डिस्क्रीट सीरीज दी तां डिस्क्रीट सीरीज दे विच की आना, फ्रीक्वेंसी आ जानी उत्थे, तां सिग्मा की आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, अंडर रूट एफ एक्स समेशन ऑफ, सॉरी आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज सानू पता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन जेड़ा है इट इज इक्वल टू मीन, तो आप इन्हू लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन द होल स्क्वायर, ठीक है जी। सो कुछ नहीं किया आपां, बस फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला ही याद करना है। एक पासे ब्रैकेट दे विच लिखना, एक पासे ब्रैकेट तो बिना लिखना है, माइनस कर देना है। एंड इहदे विच क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन सानू पता है मीन हुंदा है, इहदे विच समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन मीन हुंदा ते उत्थे मीन दी वैल्यू पुट कर देनी। तो ये हो गया साडा डायरैक्ट मैथड, ठीक है जी। डायरैक्ट मैथड बाय यूजिंग डेविएशन फ्रॉम मीन ते विदाउट यूजिंग डेविएशन फ्रॉम मीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। उस तो बाद हम आप सैकेंड मैथड की गल करांगे, दैट इज शॉर्टकट मैथड। तुहानू याद होएगा शॉर्टकट मैथड जो आप मीन दे विच कीता सीगा ते ओहदे विच असीं एज्यूम्ड मीन लिया सीगा, है ना। तो इहदे विच भी असीं एज्यूम्ड मीन यूज करांगे। तो साडा जिहड़ा फॉर्मूला आ इंडिविजुअल सीरीज वास्ते रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन दा, वो रहेगा अंडर रूट dx समेशन, जरूर पाने याद होगा, समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ dx अपॉन n दा होल स्क्वायर, ठीक है। अगर तुहानू याद है तो dx की सीगा x माइनस a ते a की सीगा एज्यूम्ड मीन, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਲਿਆ ਆ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ dx ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ n ਮਾਈਨਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ f ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ d ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ f ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਬਸ, ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ summation of f dx square upon n minus summation of f dx upon n the whole square, right? So I hope you understand. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, dx ਕੀ ਆ x minus a, ਤੇ x ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, a ਕੀ ਹੈ assumed mean, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਆ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स अपॉन एन दा होल स्क्वायर इनटू आई या सी भी तुसी लिख सकते हो, ठीक है। हुण इत्थे डी डैश एक्स की वैल्यू किद्दां आएगी, डी एक्स अपॉन आई दे नाल, ते डी एक्स की वैल्यू किद्दां आएगी, एक्स माइनस ए की है assumed mean, याद है तुहानूं। ते आई की है इत्थे कॉमन फैक्टर, इहनूं तुसीं सी भी लिख सकते हैं क्योंकि मेरे हाथ ते आई चढ़िया तो मैं आई ही लिख दिंदी हां, ठीक है। तो सी लिख लोगे तो भी ठीक ही है। तो डी डैश एक्स की वैल्यू आपां किद्दां फाइंड करनी है, डी एक्स अपॉन आई दे नाल, ठीक है जी। एंड डी एक्स की वैल्यू किद्दां फाइंड करना है, एक्स माइनस ए दे नाल, ए की है assumed mean लैके। हुण जेकर तुहानूं क्वेश्चन आंदा आ कि यूजिंग assumed mean फाइंड स्टेप डेविएशन, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਈਕੁਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਐਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰ ਲਓ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸੌਰੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਐਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ? ਬਾय ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ assumed mean ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 7, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है। तो x की वैल्यू जी दी हुई है दैट इज क्वेश्चन लिख लें तो मैनू 25 30 30
35 40 40 एंड 45। ठीक है जी। चलो ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ summation of x minus x mean ਦਾ whole square upon n। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, summation of x upon n, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, सो summation of x करो कितना होता है, 5 10 ਤੇ 5 15 1 ਤੇ चलेगा 2 1 3 3 6 ਤੇ 9 10 11 12 12 ਤੇ 4 16 20 24 245। ठीक है, ਤਾਂ n ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 245। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 7 ਤੇ 20। तो मीन साडे कोल कितना आ गया 35। ठीक है, मीन कितना आ गया 35। सो पहला सानू की चाहिए आ x माइनस मीन की वैल्यू फाइंड कर लेने आ, फिर ही उसका स्केयर करांगे। ठीक है, तो 25 माइनस 30, हुण इत्थे साइंस इग्नोर नहीं करने। ठीक है, 25 माइनस 35 कितना आ गया -10। इत्थे कितना आ गया 30 माइनस 35 5, देन अगेन -5 0, देन 5 5 10। ठीक है, बट सानू वैल्यू का चाहिए x माइनस मीन का होल स्केयर की वैल्यू चाहिए है। सो करो, जो स्केयर करांगे तो साइन खत्म हो जाएगा। 100 25 25 0 25 25 100। ठीक है, तो आ जाएगा 25 25 50 50 100 200 300। ठीक है, ये आ गया 300। तो इनू बस आप फॉर्मूले के पुट कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन का की फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज वास्ते समेशन ऑफ x माइनस मीन का होल स्केयर अपॉन n। तो ये कितना आ गया अंडर रूट 300 अपॉन n कितना आ 7। ठीक है, सॉरी इतने मैं n लिख देता है, समेशन ऑफ x लिखना सीगा। ठीक है, सो n लिखते हैं अपन, तो फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। ठीक है जी। सो 300 अपॉन 7, तो मैं तो टाइम दिखा देनी, 12 तो ऊपर का टाइम है, तो मैं रिकॉर्डिंग करती भी तो थोड़ा बहुत ठीक है हिसाब ला लिया उत्ते। तो थोड़ी जी कन्फ्यूजन इस करके थोड़ी जी हो रही है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। चलो 300 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 7 4 जा 28, 10 चो 8 2 0, 7 2 जा 14, 6.0 8 जा 56 405। तो इन अप्रोक्सीमेटली 42.86 लिख सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, हुण अंडर रूट आई होप कि तुहानू सब नू फाइंड करना आउंदा है। हुण ये ना क्योंकि नहीं आउंदा, बट जे नहीं भी आउंदा तो ईवन दैन मैं तुहानू दस दिंदी है कि आपां ने अंडर रूट किद्दां फाइंड करना है। ठीक है, सो ये हो गया 42.86। हुण इहदा अंडर रूट किद्दां फाइंड करना है, इत्थे करदा फाइंड। एक मिनट इहनू मैं इधर लिख लैंदी हां 42.86 नू। ठीक है, सो इत्थे मैं तुहानू इहदा अंडर रूट दस दी कि किद्दां फाइंड करना है। 42.86 देखो, असीं हमेशा पॉइंट तो इधर जिन्नियां भी हैं 2 2 दी ही वैल्यू लैनी हुंदी है। ठीक है, इदा 2 जे मान लो इत्थे कुछ नहीं है, आप अपने को 0 0 एज्यूम कर सकते, बट 2 zeros ही एज्यूम करनी है, बिकॉज असीं अंडर रूट स्केयर रूट फाइंड करते पे हैं। ठीक है, हुण इत्थे एक अगर एक ही टर्म हुंदी, जिद्दां मान लो 4 ही हुंदा तो आपां उहनूं 4 ही इंडिविजुअली लैना सी, बट इत्थे भी 2 दित्तियां होईयां ते आपां इहनूं कलैक्टिवली ही लवांगे। ठीक है जी, हुण 42 के आस-पास देखो किहड़ा स्केयर आउंदा है, 7 7 का 49 हुंदा तो उतों वड्डा हो जाएगा, तो 6 6 का कितने हो गए 36। ठीक है, तो 12 चो 6 कट्टे 6, तो इत्थे तो कुछ नहीं रह गया। ठीक है, तो 6 ही हो गए। तो यह पॉइंट नूं आपां इत्थे लै जांगे ते आ 86 नूं एज इट इज नीचे उतार देंगे इत्थे। ठीक है, हुण की करना हुंदा है कि जिहदे नाल पहली बारी मल्टीपल कीता उहनूं आपां नीचे प्लस कर देना, ते 1 2 आ जाएगा। हुण जिहदे नाल भी असीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उन्होंने आपां इत्थे भी लिखना है, इत्थे भी, ते इत्थे नीचे फिर उन्होंने प्लस करना हुंदा है। तो दस दी रुक जाओ, हुण 125 5 जा 625 हुंदे, जे 6 जा करांगे 126 जा करांगे तो 6 5 जा नहीं 6 6 जा ही करना पऊगा, मतलब कि जिहड़ी भी टर्म आपां इत्थे लैनी है उहदे नाल ही इहनूं मल्टीप्लाई करना हुंदा है। ठीक है, तो 125 5 जा कितने हो गए
625, ठीक है 6 to 5 ਕੱਢੇ 1, then 8 to 6 ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 0 ਅਸਿਊਮ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ 1 0 ਨਹੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੀ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ 5 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 5 5 10, 2 + 1 130, ठीक है। ਹੁਣ 130 देखो 130 अगर 5 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6100 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ठीक है 4 4 ਦਾ 16, 4 3 ਦਾ 12, 4 4 5216 ਆ ਗਿਆ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 4, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5216। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 6.55 ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਏਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 6.55 ਨੂੰ 35 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ 1 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ठीक है। तो जे आप वेरिएंस फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिन्नी भी साडी आई है 6.55 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸੇਮ ਆਣਾ ਹੈ, ठीक है याद रखियो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿਗਮਾ = summation of x² upon n minus mean ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, x² ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 35 ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ x² ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 25 ਦਾ 625, then 900 900, then 35 35 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1225, ठीक है 1225, 40 40 ਦਾ 1600, अगेन 1600 ਤੇ 45 45 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2025, ठीक है 2025। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ x² ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5 5 10 ਤੇ 5 15, 1 ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ 2 3 4 5 6 7 9 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 8875। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲੀ 8875, n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 35 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ ਸੌਰੀ 7 ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ठीक है 35 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਆਣਾ ਸਿੰਪਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, 35 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1225, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ 8875 ਬਟਾ 7 7 1 ਦਾ 7 7 2 ਦਾ 14 7 6 ਦਾ 42 7 7 ਦਾ 49, ठीक है। then ठीक है। तो ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ 1267.86, ठीक है 0.85 तो राउंड अबाउट करके 0.86 आ गया। तो इन्हों करो 1267.86 चो 1225 में माइनस कर दो 0.86, 7 चो 5 कटे 2 6 चो तो आ गया ਤੁਹਾਡਾ 42.86,
ठीक है, जिहड़ा कि सॉल्व किया सी कितना आया सी 6.55 राइट। तो ये तुहाडा आ गया विदाउट टेकिंग डेविएशन। हुण तीसरा हैगा या एज्यूम्ड मीन लैके। सो एज्यूम आई होप कि तुसीं कर लिया है, नाल दी नाल ही मैं इहनूं रब कर रही हाँ, ठीक है। चलो हुण देखो एज्यूम्ड मीन लैके जिहड़ा साडा फॉर्मूला हैगा यानी कि शॉर्टकट मैथड दे नाल वो की सीगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट summation of d dash x sorry summation of dx square upon n minus summation of dx upon n the whole square। तो ये वास्ते सानू की चाहिए आ dx की वैल्यू चाहिए है और वो किद्दां आएगी x माइनस a दे नाल, उस तो बाद सानू dx स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए है, ठीक है। तो x माइनस a सब तो पहला किन कहते हैं करते हैं सॉल्व। तो एज्यूम्ड मीन आप ले लेने 30 ले लेने से dx इज इक्वल्स टू x माइनस a, एज्यूम्ड मीन आप इत्थे ले लिया 30, ठीक है। तो 25 माइनस 30 कितना हो गया -5, 30 माइनस 30 0 0 5 10 10 20 सॉरी 15, ठीक है। dx आ गया साडे कोल ते उस तो बाद सानू की चाहिए आ dx स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए है, ठीक है। तो ये आ गया 25 0 0 25 100 100 ते 225, ठीक है। तो करो इनू समेशन ऑफ dx कितना आ गया तुहाडा 15 10 10 20 ते 10 30 ते 35 ते 40 ते ये आ गया तुहाडा 35, ठीक है। dx की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडी 35, dx स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ गई 5 5 10 5 15 2 1 3 2 5 6 7 ते 1 2 3 4 475, ठीक है। dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 475। इन्हों फॉर्मूले च पुट कर दो सिंपली, सिग्मा इक्वल्स टू dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 475, n कितना है 7 माइनस dx की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है, अपॉन 7 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कटिया जाएगा, तो ये आ गया तुहाडा 475 अगर आप 7 ना करिए 7 6 42 7 च 2 कटे 5 5 7 7 49 15 च 9 कटे 6 ते ये आ गया तुहाडा पॉइंट लग गया 078 वही आ गया 67.86, ठीक है, माइनस 25 अंडर रूट तो करो 67.86 माइनस 25.86 7 चो 5 कटे 2 6 तो आ गया वही 42.86 यानी कि 6.55, ठीक है जी। हाँ सो हम लास्ट अपना है स्टैप डेविएशन मैथड के नाल। सो स्टैप डेविएशन मैथड की है डी डैश लग जाना है प्लस कॉमन फैक्टर लग जाना है। तो मैं इन्हू रब कर दिनी होप तुसीं कर लिया, नहीं किया पॉज करके कर लियो, ठीक है। राइट सो लास्ट है अपना स्टैप डेविएशन मैथड। तो यदा फॉर्मूला आप पहले लिख लेने summation of d dash x the square upon n minus summation of d dash x upon n the whole square into common factor, ठीक है, into I। सो इतने जगह नहीं है नीचे लिख देता है बट तुसी सीधा सीधा लिख लो, ठीक है। सो ये वास्ते हम सानू की चाहिए है d dash x की वैल्यू, ओदे वास्ते सानू की चाहिए है dx upon I ते dx वास्ते सानू की चाहिए है x minus a, ठीक है। मैं रहन देती बट कन्फ्यूजन होने इस करके मैं रब करता पर दोबारा कर लूँगी, ठीक है जी। तो इनू करते हैं स्टार्ट। सो एक डी डैश एक्स की वैल्यू चाहिए है, एक डी डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी सानू चाहिए है। सो सब तो पहला आप की करना है डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज एक्स माइनस ए आप ले लेने अगेन 30, ठीक है। तो करो इनू ये आ गया -5, ये आ गया 0 0 5 10 10 15, ठीक है। उस तो बाद सानू कादी चाहिए है डी डैश एक्स की वैल्यू,
d डैश x की वैल्यू किस तरह आएगी dx अपॉन i आप इतने 5 ला लेने कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुहाडा -1 0 0 1 2 2 3, ठीक है जी। सो d डैश x की वैल्यू जी है समेशन कर लेने की आ गया 3 2 5 6 7 8 ते ये आ गया 7, ठीक है। समेशन ऑफ d डैश x कितना आ गया 7। उस तो बाद नेक्स्ट सानू किहड़ी चाहिदी है वैल्यू d डैश x स्क्वायर दी, ठीक है। d डैश x स्क्वायर दी तो ये आ गया 1 0 0 1 4 4 9 कितना आ गया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये आ गया साडे कोल 19। तो इन्हों आपां सिंपली की है फॉर्मूले दे विच पुट कर दिंदे आ, ठीक है। करो पुट सिग्मा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ d डैश x स्क्वायर कितना आ 19 अपॉन 7 माइनस d डैश x कितना आ 7 s n भी 7 है होल स्क्वायर इनटू कॉमन फैक्टर कितना ले इनटू नु ब्रैकेट अंडर रूट तो बाहर रखना है तुसी, ठीक है। कॉमन फैक्टर ले आपा 5। हुन देखो करो इनु सॉल्व, ये ते आ गया तुहाडा 1 19 ते 7 2 40 5 0 7 49 1 0 7 1 7 सो अप्रॉक्सीमेटली 2.72, ठीक है। -1 अंडर रूट इंटू 5 ये आ गया 1.72 अंडर रूट इंटू 5, ठीक है। हुण इहदा करो सॉल्व, स्क्वायर रूट कड्डो, मैं इत्थों रब करके कढदा अगर इफ यू डोंट माइंड तुसीं लिख लिया होएगा, ठीक है। अपने को जगह घट है तो 1.72 दा आपां की है अंडर रूट फाइंड करना। मैं इसलिए कर रही हूँ कि तुहानूं जिहड़ा कई बच्चों को प्रॉब्लम होएगी इस इन्हां दोवां नूं आपां नॉर्मल ले लेना, इन्हों आपां 1 ही लेना। तो 1 1 का कितना आ गया 1, ठीक है। पॉइंट इत्थे लग गया 72 ऊपरों आ गया तो 1 + 1 कितना हो गया 2। हुण 20 अगर 4 4 का कर दिया तो ऊपर चल जाएगा, 23 3 का करके देख हैं 3 3 9 3 2 6 तो 3 से चल जूगा 69। उस तो बाद 12 से 9 कड्डे 3, ठीक है। तो उपरों अपना 2 zeros आपां उतार सकते हैं नीचे, ठीक है। देन ये आ गया 26 क्योंकि 3 प्लस किते 26 ते प्लस इन्हों आपां 26 1s ही करांगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आ गया 261 दैन राउंड अबाउट 1.32 आपां कह सकते हैं, ठीक है। तो 1.32 इंटू 5 अगर आपां करिए, ठीक है, या 3 3 ला लो तुसी 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 16 5 1 ज़ा 5 ते 6, ठीक है। तो थोड़ा या हो गया है, एक मिनट 1.31 कर दे आपां 5 दे नाल 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 ते 5 1, ठीक है। राउंड अबाउट नहीं किया, मैं सीधा सीधा किया तो अपना पूरा सही आंसर आ गया है, ठीक है। नींद का बहुत ज़्यादा पै रहा है, चलो एनी हाउ। तो ये हो गया अपना 6.55। ये सारे आप जो मैथड आ इंडिविजुअल सीरीज दे विच लगा के देख लिया। सो आई होप कि तुहानूं इहदे विच कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं किया, बस यही ध्यान रखना है जिद्दां कि हुण मैं कैलकुलेशन तुहाडे सामने छोटिया छोटिया मिसटेक्स कीतियां। सो अगर पेपर च होएगा तो वो गलत हो जाऊगा, ठीक है। तो इनू बहुत ही ध्यान दे नाल आपां जिहड़ा आ पुट करना है, बस फॉर्मूला दे विच वेखना है किहड़ा किहड़ा सानूं जिहड़ा आ वेरीएबल चाहिदा आ, आपां ओनू ओहदे विच पुट करना है। तो उही अकॉर्डिंगली आपां नूं साइड ते जिद्दां मैं लिखिया सी ना dx चाहिदा आ, d डैश x चाहिदा, d डैश x वास्ते की फाइंड करना है dx अपॉन i, i वास्ते की फाइंड i सॉरी dx वास्ते की फाइंड करना है x माइनस a की है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो वो साइड ते तुसीं लिख लेना पेंसिल दे नाल ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हुण आपां गल करांगे क्वेश्चन करांगे डिस्क्रीट सीरीज दा। सो सब तो पहला मैं क्वेश्चन लिख लैनी आ, ठीक है जी। सो ना ए क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज दा, बट इहदे च उन्हें सानू फाइंड करने लई की कहा कि एक तुसीं फाइंड करना स्टैंडर्ड डेविएशन बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन। ते दूजा उन्हें कहा कि assumed मीन लैके स्टेप डेविएशन मैथड दे नाल तुसीं जिहड़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। दैट मीनस कि आपां सिंपली स्टेप डेविएशन मैथड जिहड़ा आ यूज करना है, ठीक है। सो सब तो पहला आपां गल करांगे इहदी बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन। सो बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की हुंदी है इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज वास्ते। सो अंडर रूट f समेशन ऑफ f x माइनस मीन दा होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है जी।
हुण इहदे वास्ते वेखो सानूं की चाहिए, सब तो पहला वही x माइनस मीन चाहिए आ, फिर उस तो बाद उसका स्केयर, फिर f नाल मल्टीप्लाई। सो सब तो पहला आपां मीन फाइंड कर लैंदे आ, सब तो सौखा। सो इहदे विच आपां किद्दां फाइंड करदे आ, fx अपॉन n दे नाल डिस्क्रीट सीरीज। तो इसका मतलब सब तो पहला आपां नूं fx फाइंड करना पएगा, ठीक है। fx फाइंड करना पएगा, करो 10 2 जा 20, 8 2 जा सॉरी 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, देन 8 10 जा 80, 10 4 जा 40। तो ये आ गया साडा fx, ठीक है। एंड इसका समेशन करो 8 2 10 2 3 3 3 6 4 10 18 19 20 21 22, ठीक है। तो इत्थे n की आ जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो करो ये कितनी है, 8 8 16 ते 4 20 2 3 ते 4, ठीक है 40। सो साडा मीन की आ गया फिर 220 अपॉन 40, दैट इज 5.5। 5.5 की आ गया साडा मीन। हुण सानू की चाहिए आ, x माइनस एक्स की वैल्यू और x माइनस मीन की वैल्यू, ठीक है। सब तो पहले x माइनस मीन की वैल्यू फाइंड करांगे तां ही उहदा स्केयर फाइंड करांगे, ठीक है। तो 5.5 माइनस 2 माइनस 5.5 कितना आ गया, 3.5, ठीक है। साइंस लगावांगे नाल, माइनस लगावांगे इत्थे। 4 माइनस 5.5 कितना आ गया, माइनस 1.5। 6 माइनस 5.5 कितना आ गया, 0.5। 8 माइनस 5.5 कितना आ गया, 2.5। 10 माइनस 5.5 कितना आ गया, 4.5, ठीक है जी। हुण उस तो बाद सानू की चाहिए इहदा स्केयर चाहिए आ पहला, ठीक है। 3.5 दा कितना सीगा 1225 ही फाइंड कीता सी आपां, तो इत्थे आ गया 12.25। 15 दा कितना दे 225 दा 2.25। 0.5 दा कितना आ गया 0.25, ठीक है। 2.5 कितना आ गया 6.25। 4.5 ते 4.5 दा कितना आ गया फाइंड कर लेंगे आ। यानी कि 20.25, ठीक है। एंड सानू बट चाहिए की है, x माइनस एक्स होल स्केयर तो चाहिए नहीं, सानू चाहिए f इंटू x माइनस मीन दा स्केयर। तो हुण इहनूं आपां फ्रीक्वेंसी नाल जिहड़ा है करना है। तो करो 12.25 नूं 10 नाल करांगे तो आ जाएगा 122.5, ठीक है। 2.25 नूं 8 नाल कर लैंदे आ, 2.25 नूं 8 नाल, एक मिनट, ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ 18, ठीक है। कुछ पता नहीं कर 18.0 में लिख देनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देन 8 नु 0.25 नाल ये आ गया 2.0। देन उस तो बाद आ गया 6.25 नु 10 नाल करांगे तो आगे आ जाएगा 62.5 ते 20.25 नु 4 नाल करो, ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ 81.0, ठीक है। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 3 4 6 4 10 ਤੇ 18 1 2 286, ठीक है। f x माइनस x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 286। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। पहले मैं दूजा यूज कर लेनी है, कन्फ्यूजन ना होए, ठीक है। सो ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ अंडर रूट 286 अपॉन n कितना ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40। ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ, 2 to the 4 0 the 0 2 1 the 2 4 the 8 2 3 the 6। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 26 the 120, ठीक है। 23.0 2
27 आएगा इत्थे, ठीक है 140 तो ये आ गया तुहाडा 3.0 ते 21 0 पॉइंट लगा 0 ला लिया ते ये आ गया तुहाडा 7.15 दा अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट 7.15। हुण अंडर रूट 7.15 नूं करो सॉल्व, अंडर रूट 7.15 नूं करो। हुण देखो इनू 2 ले लेने, इनू 1। हुण अगर आपां देखिए 3 3 जा 9 हुंदे, यानी कि 2 2 जा 4 लवांगे, 2 2 जा 4 3 आ गया, ठीक है इत्थों आपां कर लिया 4 ते इत्थों आपां दोनों तार लिया उपरों ते हुण इनू किहदे नाल करिए 43 नूं अगर 3 नाल करिए तो 3 3 3 4 12 बहुत 46 नूं इत्थे पॉइंट भी लाना, ठीक है 6 नाल करके वेख लेना 6 6 36 6 4 24 25 26 27 47 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ 7 7 ਦਾ 49 7 4 ਦਾ 28 29 30 31 32 ਸੋ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2.6 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਆ ਗਿਆ तो ये है 276। 15 चो 6 कड्डे 9 ते 10 चो 7 कड्डे 3, ठीक है ते इस तो बाद ये आ गया 6 प्लस किते ते आ गया 2 5 ते इत्थे आपां 2 जीरोस पुट कर लैंदे आ ते 5 28 8 सा कर के वेलिए पर वो ज़्यादा हो जाना 7 करके वेलिए तो हो जाएगा 7 5 30 सो अप्रोक्सीमेटली 7 सो ये आ गया तुहाडा 2.67, ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन तुहाडी कितनी आ गई 2.67 बिल्कुल सही आंसर आया अपना। हुण इनू आपां करांगे दूसरे मैथड दे नाल दैट इज स्टैप डेविएशन मैथड दे नाल। आई होप कि तुसीं लिख लिया कर लिया सॉल्व, ठीक है हुण इनू स्टैप डेविएशन मैथड नाल करके देखिए। सो मीन कितना आया सी अपना याद रख लियो 220 पर मीन की तो जरूरत नहीं पै पावे। सो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला की है समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस summation of f d dash x upon n the whole square into I या into c। that means कि हुण सानू की चाहिदा है d dash x चाहिदा है, ओदे वास्ते सानू की चाहिदा है dx, ओदे वास्ते सानू किहदी वैल्यू चाहिदी है x minus a दी वैल्यू चाहिदी है, ठीक है क्योंकि d dash x फाइंड करने वास्ते फॉर्मूला कितना dx upon I की है इत्थे कॉमन फैक्टर। हुण सब तो पहला आपां की फाइंड करांगे dx फाइंड करांगे, फिर उस तो बाद d डैश x फाइंड करांगे, फिर f d डैश x फाइंड करांगे, फिर f d डैश x स्क्वायर फाइंड करांगे, ठीक है तो इत्थे तुसीं साइड ते लिख भी सकदे हो कि सानू की चाहिदा f d डैश x चाहिदा है, फिर f d डैश x स्क्वायर भी चाहिदा है। सो करिए इनू सॉल्व आपां n आपां नूं पता है कितना आ सो सब तो पहला आपां dx फाइंड कर लैंदे आ dx, ठीक है सो dx की हुंदा आ x - a। हुण इहदे विच एज्यूम्ड मीन की आपां लै सकदे हां, दसो की लईए 4 ले लेने एज्यूम्ड मीन, ठीक है एज्यूम्ड मीन आपां ले लिया 4 तो dx आ गया 2 - 4 - 2 4 - 4 0 6 - 4 2 8 - 4 4 10 - 4 6। उस तो बाद सानू की चाहिए आ d डैश x जिहदी वैल्यू हुंदी है dx upon I आपां इत्थे 2 ही ले लेने आ तो ये हो गया -1 0 1 2 3, ठीक है देन सानू की चाहिए है उस तो बाद d डैश x स्क्वायर भी चाहिए है सानू, ये आ गया 1 0 1 4 9, ठीक है इनू आपां प्लस कर लेने क्योंकि सानू चाहिए है तो ये आ गया 9 10 11 12 13 14 15 d डैश x स्क्वायर कितना आ गया साडे कोल। वैसे इनू इंडिविजुअली सानू लोड नहीं पैनी है, पहला आपां f d डैश x स्क्वायर फाइंड कर लेने, फिर उस तो बाद f d डैश x फाइंड कर लांगे। मैं इनू रब कर रही हां फिर फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है फॉर्मूले नूं सो f d डैश x स्क्वायर की आऊगा f कितना है 10 इत्थे आ गया 10 8 0 0 8 1 8 10 4 40 4 9 36
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਫ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਐਫ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਫ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ 10 minus 1 ਦਾ -10 then 0, ठीक है। 8 0 ਦਾ 0, ठीक है। 8 1 ਦਾ 8, 10 2 ਦਾ 20, 4 3 ਦਾ 12, ठीक है। ਤਾਂ f d dash x ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 6 1 2 ਤੇ 4 2 6 ਤੇ 3 9 94, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੇ 10 32 ਤੇ 8 40 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30, ठीक है। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ, sigma is equals to under root summation of f d dash x square upon n minus summation of f d dash x upon n the whole square into I। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, f d dash x square ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 94 upon n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40, ਠੀਕ ਹੈ। f d dash x ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30, n ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 40, ਇਹਦਾ होल स्क्वायर इनटू आई बाहर लिखना है, कितना सीगा आई ਆਪਾਂ ਲਿਆ 2, ठीक है। बाहर लिखने ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 9/16, ਤਾਂ 9/6 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ, ठीक है। 94 40 42 ਦਾ ਆ ਗਿਆ 84 ਤੇ 1.0 ਤੇ 4 3 ਦਾ 20 0 ਲੱਗ ਗਿਆ 2.35, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2.35 ਮਾਈਨਸ 9.16 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 0 ਲੱਗੀ 16 5 ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, then 16 5 ਦਾ ਹੋ ਗਏ again 80 66 ਦਾ 96 0, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 0.57 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ 0.57 into 2, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2.35 minus 0.57 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਂ 15 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 8, ठीक है। 12 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 7 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1.78 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਨਟੂ 2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1.78 ਨੂੰ, ਸੋ 1 1 ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ठीक है। ਇਹ 2 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲ ਗਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 78, ਤਾਂ ਇਹ 23 ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 23 3 ਦਾ 69, 18 ਚੋਂ 9 ਕੱਢੇ 9 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 0 0 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ठीक है। ਦੈਨ 3 ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 26 ਤੇ 26 ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 4 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 4 4 ਦਾ 16 4 6 ਦਾ 24 25 4 2 ਦਾ 19, ठीक है। 263 ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 3 3 ਦਾ 9 3 6 ਦਾ 18 3 2 ਦਾ 6 7, ठीक है। 3 ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ 1.33 into 2। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 3 ਦਾ 6 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਹਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਆ, ठीक है। ਤਾਂ 2 4 ਦਾ 8 ਜਾਂ 2 3 ਦਾ 6 ਤੇ 2.68 ਆ ਗਿਆ, ठीक है। 6 7 अपना उधर आया सी 6 8 आ गया, चलो थोड़ा बहुत, तो 2.67 अपना आंसर ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। दैट मीन्स कि अपना ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ठीक है जी। सो ये हो गया अपना डिस्क्रीट सीरीज, कुछ नहीं है बस फॉर्मूला ही याद रखने हैं
और इनू सब तो ज़्यादा प्रैक्टिस करियो, यानी कि फॉर्मूला नू स्टैप डिवीजन मैथड है ना, इनू घट्टो घट्ट तुसी 5 वारी फॉर्मूलाज जिहड़े लिख के उस तो बाद ट्राई करियो, ठीक है, फिर तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा गलत नहीं होगा। अच्छा, उस तो बाद एक कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन लिखण लगी हां। सो हुण आपां करांगे कंटिन्यू सीरीज दा। इहदे विच भी आपां ने ओही जिद्दां डिस्क्रीट सीरीज च आपां डेविएशन मैथड यूज कीता पहलां, ते उस तो बाद आपां स्टैप डेविएशन मैथड यूज कीता, डिवीजन फ्रॉम मीन ते स्टैप डेविएशन मैथड। सो उसी तरह ही करांगे। सो सब तो पहला आपां करना है डेविएशन फ्रॉम मीन यूज करके। सो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ √f summation of f x minus mean the whole square upon n। that means सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, summation of fx upon n। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ x ਤੇ 0 ਤੇ 10 ਦੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 25 35 ਤੇ 45। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ fx। ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, 10 ਆ ਗਿਆ, 15 4 ਦਾ 60, 25 5 ਦਾ 125, 35 4 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 4 5 ਦਾ 20, 4 3 ਦਾ 12 13 14 140 ਤੇ 45 2 ਦਾ 90, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ fx ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ f ਯਾਨੀ ਕਿ n, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 4 2 6 5 11 12 ਤੇ 14 plus 17, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ 6 plus 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 3 4 425 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ fx। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾइंड कर सकते हैं 425/17, ठीक है। तो ये चले ही जाएगा, मैं लादा 17 2 जा 34 35 36 37 38 40 40 17 5 जा 85। सो साडे कोल मीन कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। हुण सानू की चाहिदा, सब तो पहला आ वाली वैल्यू चाहिदी है x माइनस मीन दी, ठीक है। तो मीन साडे कोल कितना आ गया 25, ठीक है। तो करो इनू फाइंड, 5 माइनस 25 कितना आ गया -20, 15 माइनस 25 कितना आ गया -10, 0 देन 10 देन 20, ठीक है। उस तो बाद सानू कारी चाहिदी है x माइनस मीन दे होल स्क्वायर दी, ये आ गया 400 100 0 100 400। लेकिन क्वेश्चन वास्ते सानू कारी चाहिदी है f x माइनस मीन दे होल स्क्वायर दी, तो f कितना 2 2 4 ਦਾ 800 आ गया ਇੱਥੇ, then 400 then 0 then 400 then 800, ठीक है जी। तो ये आ गया साਡਾ 8 12 2400, ठीक है सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2400/n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, 2400/17 17 4 ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 68 17 1 ਦਾ 17 3 पॉइंट इतना लग गया 0 लग गई 17 1 ਦਾ 17। सो अप्रॉक्सीमेटली आ गया साਡਾ 141.12, ठीक है, अंडर रूट या 1 1 ही ले लो, ठीक है। 141.11 इन्हों होर अगे सॉल्व करना तो कर सकते हो, सो 2 ही रखने राउंड बोर्ड करके क्योंकि कर आ जाएगा, ठीक है। हुण इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, 141.12, राइट। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ 2 ਲੈ ਲੇ, ਫਿਰ ਆ 2 ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 1 ਦਾ 1, ठीक है। 1 + 1 कितने हो गए 2, ऊपरों का आ रहा 41, ये 22 2 ਦਾ 44 हो जाएगा, तो ये 21 ਤੇ ही जाऊगा, 21 1 ਦਾ 21 0 4 2 20 आ गया, ठीक है। तो ऊपरों ये आ गया साडा 1 कितना सीगा, तो इत्थे आ गया 22, ठीक है। तो इत्थे अपना हुण तो आपां जिहड़ा आ 2 0 ले लैंदे आ, तो पॉइंट इत्थे आ जाएगा, ठीक है। 2 0 ले लैंदे आ, तो आ जाएगा 22 9
2 ਦਾ 18 9 2 ਦਾ 18 19 ठीक है। सो ये 9 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ठीक है 198। सो 11.9 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ summation of f d dash x square upon n minus summation of f d dash x upon n the whole square into I और c जो ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ d dash x ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। d dash x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ dx upon I ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ x minus a ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला था x कितना आ गया 5 15 25 35 45 ठीक है। देन उस तो बाद सानू की चाहिए है dx dx की है x minus a ठीक है dx की है x minus a। सो एज्यूम टू मीन अपन ले लेने थे 15 तो 5 minus 15 कितना आ गया minus 10 ठीक है 15 minus 15 0 then 10 20 ਤੇ 30 ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਕਸਟ d dash x d dash x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dx upon i ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -2 0 2 4 ਤੇ 6 ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ d dash x square d dash x ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ f d dash x ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ f d dash x ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 2s are 4 4 2s are 0 5 2s are 10 4 4s are 16 2 6s are 12। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ d dash x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 2 2s are 4 0 4 4 4s are 16 6 6 ਦਾ 36 ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ f d dash x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ f d dash x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ f ਦਾ ਮਲਟੀ 2 4 ਦਾ 8 4 ਦਾ 0 0 5 4 ਦਾ 20 16 4 ਦਾ 64 ਐਂਡ 36 2 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 72 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ n ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਕਰੋ 16 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 28 ਤੇ 10 38 ਤੇ -4 34 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋ 4 2 6 8 14 2 1 3 6 3 9 5 15 164 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ summation of f d dash x square upon n minus summation of f d dash x upon n the whole square into I right। so I कितना है f d dash x square 164 n कितना है 17 minus f d dash x कितना फाइंड किया अपन 34 n कितना है 17 whole square under root into common factor कितना ले अपन 5 ये आ गया 2 ता इन्हों हम करो सॉल्व 164 17 टाइम 9 ते जाएगा 19 का 153 4 to 3 कटे 1 पॉइंट लगा 0 लग गई ते आ गया 17 6 का 102 10 to 2 8 ते बस
पॉइंट लगा 0 लगी 17 4 का 68 17 4 85 हो गया 4 का रहेगा सो 9.65 लिख सकते हैं आप ठीक है 9.65 माइनस आ कितना आ गया 4 ठीक है तो अंडर रूट इंटू 5 तो ये आ गया 5.65 द अंडर रूट इंटू 5 हम आप करना है 5.65 का अंडर रूट फाइंड कर लेंगे इसमें इतने कर लेंगे ठीक है ठीक है सो 5.65 तो 2 से जाऊँगा पहला 2 2 ज़ा 4 1 इतने लग गया 65 ये आ गया 4 तो 4 ज़ा अगर करिए तो 4 4 ज़ा 16 4 4 पर चल जाता 43 3 ज़ा कर लेंगे 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 43 3 ज़ा 129 ठीक है 15 चो 9 कड्डे 6 तो 5 चो 2 कड्डे 3 ठीक है तो उपरों आप 2 0 लगा लेंगे दैन 3 सी 46 हो गया दैन 4 इतना कितना जा सकते हैं 46 9 4 ज़ा 36 होंगे 8 ना जाके देख लेंगे 8 8 ज़ा 64 8 6 ज़ा 48 49 50 51 52 53 54 8 4 ज़ा 32 33 34 35 36 37 ये ज़्यादा हो गया सो इतने आप 2.37 के नाल अगर आप इनू जाइए तो ये हो जाऊगा ठीक है 2.37 इंटू 5 करांगे कॉमन फैक्टर है जोड़ा तो करो इनू 2.37 इंटू 5 5 7 ज़ा 35 5 3 15 16 17 18 5 2 ज़ा 10 11 सो अप्रॉक्सीमेटली वो साडा 11.9 सी 11.85 आया ठीक है सो अप्रॉक्सीमेटली साडा आंसर ठीक है सो ये हो गया तुहाडा कंटिन्यू सीरीज सो ये प्रॉपर टॉपिक हो गया तुहाडा स्टैंडर्ड डेविएशन का ठीक है जी सो कुछ नहीं करना बस फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूलेज नूं उहदे विच पुट कर देना है दैट्स इट ठीक है जी सो इस तो बाद जिहड़ा हुण मैं 28 जुलाई तो बाद ही पाऊंगी वीडियो सो कोरिलेशन ते रिग्रेशन दी पाऊंगी ठीक है जे मैनूं संडे नूं टाइम मिल गया तो फिर मैं मतलब कल अगर मैनूं टाइम मिल गया या परसों टाइम मिल गया तो बिकॉज मैं ट्यूसडे नूं जाना है तो बट नहीं मिलना मैंने लगता नहीं मिलना ठीक है मैं प्रॉमिस नहीं करती सो 20th तो बाद ही पावांगी कोरिलेशन ते रिग्रेशन का 2 लैक्चर तुहाडे रह गए ठीक है जी सो दैट वाज ऑल थैंक यू